Students, let's continue with the unit understanding quadrilaterals. Students, so far in this unit, we have done properties of polygon. First property that we have done is the sum of interior angles of a polygon, which is equal to n minus 2 into 180. Then we have done the property of the measure of each interior angle of a regular polygon. So regular polygon means whose all the sides are equal. So उसका फॉर्मूला क्या था बेटा? वो था n minus 2 into 180 upon n, that is the number of sides. Now we start with the next property of a quadrilateral, that is the sum of measures of the exterior angle. याद रखना पहले था इंटीरियर, अब है exterior angles of a polygon, that is equal to 360 डिग्री. बेटा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, चाहे हमारा पॉलीगन ट्रायंगुलर हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो, whether it is regular whether it is not regular, but if it is a polygon their exterior angle must be 360. अब exterior angle होता क्या है? Okay, if you draw any quadrilateral, I draw this quadrilateral. अब इसमें exterior angle क्या होगा? We have to move towards one side only. मान लो I start from this point A. So what is the exterior angle? If I move from A to B, what do I have to do? I have to move straight way. अब straight way की जगह क्या करेंगे हम? I move towards this side. फिर आ गया इधर, I have to move straight way, but हमने इधर जाना है तो we move to this side. Then we move straight way, but हमने यहाँ मुड़ना था, we move this side. ये एंगल हो गया. Then we move straight way. Then तो मतलब अगर आपने इस क्वाड्रेटर में मूव करना है, हम कैसे मूव करेंगे? इस दिस वे, देन मुड़ेंगे इस तरफ है, देन वी टर्न टुवर्ड दिस साइड, एंड दीज एंगल्स आर द एक्सटीरियर एंगल्स. मान लीजिए इफ द क्वाड्रेटर नेम इज ABCD. अंडरस्टैंड? डोंट कंफ्यूज विद द एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल होते क्या हैं? पहले हमने किया था इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर तो अंदर के होंगे, वो हमें पता है, बट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? टुवर्ड्स वन साइड. आपने ऐसा नहीं करना है जैसे कि मान लो ये क्वाड्रेटर हो गया, आपने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं. दीज आर नॉट द एक्सटीरियर एंगल्स. अंडरस्टैंड? सो एक्सटीरियर एंगल्स ये हो गए 1 2 3 4. दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स, बट दीज आर नॉट exterior angles, not exterior angles. I hope students you understand what are exterior angles, and make sure students whatever may be the figure, whether it is a quadrilateral or triangle or pentagon or hexagon, exterior angles sum is always 360 degree. Understand? Now let's start with exercise 3.2, question number 1. Now look at this figure. We have to find the value of x. Find x. If you look at this figure, here all these angles are the exterior angles. तो exterior angles के लिए हमारे में एक ही प्रॉपर्टी होती है. What is that? That sum of exterior angles of a polygon, चाहे वो polygon कोई भी हो, is always equal to 360 degree. Now put the values. This angle is x degree, this is 125, this is 125. ठीक है? Understand? So अब इनका सम क्या आएगा? सम तो वो ही आएगा 360 degree. So add them. 125 plus 125 is equal to 250 degree, and x comes to be 360 minus 250 is equal to 110. It means in this figure x comes to be 110 degree. Understand students? Students, here in this second part
अगेन वी हैव टू फाइंड x, बट उसके लिए देखेंगे क्या बाकी एंगल से भी एक्सटीरियर हैं. देखिए, दिस एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल, दिस एंगल इज एक्सटीरियर. अब बेटा ये सिंबल किसके लिए होता है? दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री. दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर, बट हियर वी डोंट नो व्हाट इज एक्सटीरियर. नाउ अब अगर आपको इंटीरियर एंगल कितना 90 है, तो आपको पता है बेटा, अगर आपको एक एंगल पता हो एक ही लाइन के ऊपर, तो दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था. विच प्रॉपर्टी? एंगल्स ऑन अ लाइन, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर्स. तो इससे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे इसकी तरह, देन वी यूज द सेम प्रॉपर्टी. ओके, सिंस इसको 1 मान लीजिए, 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180. क्या रीजन है? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स. अब इससे एंगल 1 निकालेंगे. व्हाट इज एंगल 1? 180 minus 90 degree is equal to 90 degree. So here angle 1 comes to 90 degree. Now again use the same property, since we know that sum of exterior angles of a polygon is equal to 360. Now put the values, all values. X, ये क्या? एंगल 1, दिस इज 60 डिग्री, इट इज गिवन टू बी 90 डिग्री, अगेन 70. याद रखना एक्सटीरियर एंगल्स का ही लेंगे हम. इज ऑलवेज इक्वल टू 360. सो पुट द वैल्यूज. एंगल 1 इज 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो एड देम. इट इज x प्लस 90 plus 90 180, 180 plus 60 is 240, 240 plus 70 is 310 is equal to 360 degree. So what is x? X is 360 degree minus 310 degree, which comes to be 50 degree. तो students, इसी तरह से we are able to find the exterior angle of this regular polygon. Question number 2. Find the measure of each exterior angle. Exterior angle of a regular polygon. याद रखना, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा? Whose all the sides are equal. अब अगर आपको हर एक एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम? याद रखना एक चीज. दिस इज वन मोर फॉर्मूला, दैट इज द measure of each exterior, measure मतलब कितनी आती है उसकी मेजरमेंट, of each exterior angle of a regular polygon किसके इक्वल होगा? याद रखना, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स. दूसरा फॉर्मूला, the number of sides of a regular polygon whose, अब देखो यहां पर हमने ईच एंगल फाइंड किया अगर हमको नंबर ऑफ साइड पता थी. सो अब अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज गिवन, क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका? 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. आगे समझ? मैं फिर से समझा रहा हूं. अगर आपको एक दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन जिसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है और बोलते हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स. इसी का उल्टा, अगर आपको नंबर ऑफ साइड की जगह अगर आपको हर एक एंगल निकालना हो और आपको नंबर ऑफ साइड्स अगर निकालनी है, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, जो चीज दी होगी. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2.
फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एक्सटीरियर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड दिए 9 साइड्स दिए हैं। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स कितने दिए हैं? 9 दिए हैं। सो निकालना क्या हमें? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? वो इज इक्वल टू 360, ये वाला फॉर्मूला, अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी? 9 थी साइड्स। सो 9 4 जा 36, तो मतलब हर एक एंगल का मेजर होगा 40 डिग्री। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट वही है। अब उसमें 15 साइड दी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है? 15। सो देयरफॉर measure of each exterior angle is equal to 360 upon number of sides. What is that? That is 15. So 15 into 2 30, we carry with 60, 15 into 4 60. So मतलब measure of each exterior angle कितना हो जाएगा? 24 डिग्री। अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या फाइंड करना है? ध्यान से पढ़ो कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन है। हमने उसमें साइड्स फाइंड करनी है, जिसमें आपको मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर कितना दिया है? 24। अब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है हमें? इट इज 24 डिग्री, ये दिया है हमें। और हमें क्या फाइंड करनी है? नंबर ऑफ साइड्स। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या मैंने बताया था हम लोगों को बेटा? फॉर्मूला वही था, 360 डिग्री अपॉन, अगर आपको एंगल दिए हैं तो अपॉन मेजर ऑफ ईच एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल। सो कितना दिया हमें? 24 दिया हुआ, 24 डिग्री। नाउ डिवाइड इट। सो 24 इंटू 1 24, वी लेफ्ट विद 120, 24 इंटू 5 120। सो मतलब अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 24, तो नंबर ऑफ साइड 15 होंगी। और जो इससे पहले पार्ट में किया था हमने, नंबर ऑफ साइड 15 दी थी, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर कितना निकला था हमारा? 24 डिग्री। तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा बेटा। अगर आपको फिर से समझा रहा हूं, बट याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है? अगर आपका रेगुलर पॉलीगन दिया है और एंगल्स कौन से दिए हैं? एक्सटीरियर एंगल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा इस पे बड़ा कंफ्यूज मत होना। हियर इट इज गिवन दैट हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है हमें। ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ, क्या करेंगे? फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये फाइंड करना है हमें। बट हमें क्या दिया इसमें? हमें इसमें इंटीरियर एंगल दिया है। याद रखना बेटा ध्यान से, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज गिवन। तो स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू कि हमारा फॉर्मूला किस में एप्लीकेबल होगा? अगर हमारा वो एक्सटीरियर एंगल दिया होता। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ऐसे फिगर है, अगर ये आपको दिया हुआ है इंटीरियर एंगल, तो क्या आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो? हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। नाउ सिंस सम ऑफ इंटीरियर and
एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आपको इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल जाएगा, कितना है? 180 है। सो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस 165 डेट इज 15 डिग्री। अब आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया। नाउ व्हाट वी डू, वी कैन फाइंड आउट फॉर नंबर ऑफ साइड्स हमने जो निकालनी थी ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बेटा क्या फॉर्मूला होगा इसका? 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। वो कितना दिया हुआ है? 15 डिग्री। सो 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। सो इट मीन्स नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई? 24 डिग्री। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स?